میں زمین سے اناج نہ اگاتا، تو پھر دنیا کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ جب ریت کی یہ فضیلت ہے تو آقا کی حقیقت کیا ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ حسن نقوی صاحب۔ مامگر جاگتے آئے گا کیا کہا کہ جب ریت کی یہ فضیلت ہے تو پھر آقا کی حقیقت کیا ہوگی؟ کہا کیا اللہ کا بقیہ، کون؟ فرمایا قائم۔ چونکہ سارے پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں نا، اور میرے بھائی نے بتلایا ادنان صاحب نے کہ مختلف چینلز والے یہاں آئے ہوئے ہیں اور سب جشن امام زمانہ منا رہے ہیں، اور ویسے بھی کوئی شیعوں کا قبضہ نہیں ہے امام زمانہ پر۔ 97 میں ڈاکٹر اسرار سے کسی نے کہا تھا کہ ملک کے حالات ٹھیک کرنے ہو تو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا دعا مانگو کہ پاکستان میں کوئی خمینی پیدا ہو، اور کہا اگر عالم اسلام کے حالات ٹھیک کرنے تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا پھر دعا کرو شیعوں کا 12واں امام آ جائے۔ توجہ ہے صاحب ہوتا گی، جاگیے گا اب اس لیے بولیے گا بقیہ، بہت مہربانی، بقیت اللہ، اللہ کا بقیہ۔ زین بھائی کون؟ میرا اور آپ کا زمانے کا امام ہے۔ جانتے ہیں بقیہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی جوہری کی دکان پر جائیں، یہ جملہ میں آپ کے لیے بالعموم اور بالخصوص اپنے بھائی میر حسن صاحب کی سماعت کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ کل بہت خوب ایبٹ روڈ پر انہوں نے امام زمانہ کی منقبت پڑھی، اس لیے میں یہ جملہ ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آپ کو پتہ چلے کہ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اس زمانے کے امام کے عارف بنیے۔ رسول نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور زمانے کے امام کا عارف نہ ہوا وہ جہالت کی موت مرا۔ بقیت اللہ، اللہ کا بقیہ کیا؟ آپ کسی دکان پہ جائیں، بھائی شبیر سے کسی جوہری سے کہیں کہ مجھے کوئی نگینہ دکھا، وہ آپ کو ایک نگینہ دکھائے گا۔ آپ کہیں گے کوئی اور دکھا، وہ آپ کو ایک اور نگینہ دکھائے گا۔ آپ کہیں گے کوئی اور دکھا، وہ آپ کو 5-7 نگینے دکھائے گا۔ آپ کہیں گے نہیں اگر کوئی اور نگینہ ہے تو دکھا۔ وہ اٹھے گا، اپنی تجوری کھولے گا، ایک ڈبی نکالے گا، اس میں سے ایک نگینہ نکال کے آپ کے سامنے رکھے کہے گا بس میاں اسے دیکھ لو، اب جو میری دکان کا بقیہ ہے وہ یہی ہے۔ اللہ اکبر، بولتے آئیے گا، بڑی مہربانی، بغرامہ سے جاگتے آئیے گا۔ اللہ سے توجہ کر رہا کیا کہا اب جو میری دکان کا بقیہ ہے بس وہ یہ ہے۔ شرک ہے یہ سوچنا بھی کہ اللہ 14 سے افضل کسی اور کو نہیں بنا سکتا تھا، بنا سکتا تھا مگر وہ کیا کرے؟ یہ کبریائی کے ایسے عظیم شاہکار تھے کہ اللہ نے بقیت اللہ میرے اور آپ کے امام زمانہ کو کہہ کر دنیا کو بتایا میں تمہیں کیا کیا دیتا، میں نے تمہیں علی جیسا امام دیا، حسن جیسا امام دیا، حسین جیسا شہنشاہ دیا، سرکار عسکری جیسا امام تمہیں دیا، اس کے باوجود دیکھنا چاہتے ہو کہ میرے شاہکار کا کمال کیا ہے؟ نرجس کے چاند کو دیکھو، میرا بقیہ بس یہی ہے۔ اللہ اکبر، مولا بادشاہ، مولا آپ کو بات، مہربانی، مہربانی، اللہ جن کے دلوں میں علی بستا ہے۔ اللہ جائے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر۔ توجہ ہے آپ صاحبان ہوتی، جاگے آپ صاحبان ہوتی، میرے جتنے نوجوان دوست بیٹھے ہیں شہزادی آپ سے راضی ہو، بھائی علیہ السلام توجہ کیجئے گا۔ بھائی زنال عابدین مبارک ہو کہ آپ نے اس گھر میں آنے سے پہلے، خود رات بسر کرنے سے پہلے وہ رات منا لی کہ جسے دنیا شب قدر جانتی ہے۔ اور ویسے بھی بخاری صاحب میرے امام کی آمد 15 شعبان فجر کا وقت جمعہ کا دن 255 ہجری تھا، بہت عرصے کے بعد 15 شعبان جمعہ کے دن آئی ہے۔ اور اگر آپ بیدار ہیں تو جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام کی آمد سے پہلے جو شب ہے اسے آپ شب برات کہتے ہیں، توبہ کی رات، لطف لیجئے گا، گناہوں سے بخشش کی رات، کہ اللہ کہتا کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے 1400 سال کے بعد بھی میرے امام کی آمد سے پہلے باب توبہ کھولا ہوا ہے کہ اس رات اپنے گناہوں کی معافی مانگو، نرجس کا جان تمہیں امان دے دے گا۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے آپ صاحب، بہت مہربانی، مہربانی۔ اللہ
अल्लाह अकबर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आप सलामत रहे। मोहतरम सज्जाद बुखारी साहब जैसे बुजुर्ग को मौला चाहे ज़ोहरी इमाम ज़माना कायम और दायम और शाद व आबाद रखे। लुत्फ़ ले रहे जितने मेरे साहिबान तशरीफ फरमा है। देखिए रसूल की गिलान साहब एक हदीस है, अव्वलुना मोहम्मद। बात मैंने समझा दी तो मैं बहुत बड़ी दुआ लेना चाहता हूँ। मैंने बातें भी दो की दो करनी है। क्या फरमाने? अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। ठीक है, हम 14 के 14 मोहम्मद हैं। पहला मोहम्मद आमिना का लाल। मेरे साहब एक फिक्र देना चाहता हूँ भाई साहब बख्तर साहब, पहला मोहम्मद आमिना का लाल, आखिरी मोहम्मद नरजिस का चांद। फिर समझेगा, पहला मोहम्मद आमिना का लाल, आखिरी मोहम्मद नरजिस का चांद। दोनों मोहम्मद में एक कद्र मुश्तरक है, एक बात मुश्तरक है। जानते क्या? पहले मोहम्मद ने अपने बाद कोई नबी नहीं आने दिया, आखिरी मोहम्मद ने अपने बाद कोई ईमान नहीं आने दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। हाथ बुलंद करके हैदरी अस्करी जागना। मैंने क्या कहा? पहले मोहम्मद ने अपने बाद कोई नबी नहीं आने दिया, आखिरी मोहम्मद ने अपने बाद कोई इमाम नहीं आने दिया। या मैं यूं कह दूं, पहले मोहम्मद पर खत्म नबूवत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहुत मेहरबानी। पहले मोहम्मद पर खत्म नबूवत है, आखिरी मोहम्मद पर खत्म इमामत है। बस मैं अगर इजाजत दे तो एक बात और कर लूं। बुखारी साहब मेरे सारे भाई तशरीफ फरमा है, मौला मेरे भाई ज़ैनुल आबिदीन साहब की तौफीकात में इजाफा फरमाए, इनकी वालिदा को मौला शिफाए कामिला अता फरमाए, इनके मामू डॉक्टर ज़ैगम साहब को मौला और मजीद दुनियावी औहदों में तरक्की अता फरमाए, और इस घर को, इस घर पे रहने वालों को और इस घर में जश्न मनाने वालों को, जश्न पढ़ने वालों को, जश्न सुनने वालों को वली असर कम अज कम अपने ज़हूर तक कायम और दायम रखे और सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। मैं दो बातें करना चाहता हूँ मीर साहब। जैसे हमें कोई मुश्किल आती है, हम फौरन कहते हैं या अली मदद, ठीक है ना? जागिएगा, ऐसा है ना? अबुल वफा शिराजी हमारे मज़हब अहले बैत का एक मोतबर नाम गुजरा है। बेगुनाह बादशाह ने कैद कर दिया, कैद खाने में थे, 2 रकत नमाज इस्तिखारा पढ़ी और नबी को बुलाया। आलम ख्वाब में रसूल की ज़ियारत हुई। तवज्जो, रसूल आए, काबुल वफा क्यों बुलाया? बैगनाम बात लुत्फ लीजिएगा। कहा एक मुश्किल में पड़ गया। फरमाया मज़हब अहले बैत के आलिम हो, जानते नहीं मुश्किल में मुझे नहीं अली को बुलाना है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ना 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 ना, शोहरा की महफिल है और अदबी लोग तशरीफ फरमा हैं। मैं वो चेहरे देख रहा हूँ जो बड़े दूर दराज इलाकों से इस महफिल में शिरकत के लिए आए हैं। मोहतरम सज्जाद बुखारी साहब जैसे दाना नाज़िम मिंबर तशरीफ फरमा हो, मीर साहब जैसे पढ़ने वाले तशरीफ फरमा हो, और मैं बात वाज़े ना करूँ तो मुझे लुत्फ नहीं आएगा। नबी ने क्या कहा कि मैंने कहा नहीं था कि मुश्किल के वक्त अली को बुलाना है। किस अली की बात कर रहा हूँ कि जो मिंबर कूफा पर बैठकर मशीयत की आंखों में आंखें डालकर कहता है, दुनिया वालों तुमने पहचाना ही नहीं मैं अली कौन हूँ। आओ आज मैं बताऊं, आदम की तौबा मैंने कबूल कराई, नूह की कश्ती मैंने किनारे लगाई, इब्राहिम के लिया को गुलजार मैंने किया, यूसुफ को याकूब से मैंने मिलाया, अय्यूब को सब्र का मोर्चा मैंने दिया, मेराज की रात पर्दे में मैं बोला, हिजरत की रात बिस्तर पर मैं सोया। खुदावंदे सुगन मीर अली ने जो देखा कि किसी का गुजारा अली के बगैर नहीं, कलम उठाया और लिख दिया, खुर्शीद फलक अक्स से तुरे ताजे अली है, अल्लाह के सिवा जो भी है मोहताजे है। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। बेशक सदका इमाम ज़माना मीर साहब पढ़ने वालों ने तो हमेशा लेना सीखा है। ये मीर साहब ने ये 2000 मेरे लिए 2 करोड़ 2 अरब से बढ़कर है, इसलिए कि ये बराए रास्त मेरे ज़माने के इमाम का सदका है।
जागते आइएगा। बहुत अच्छा आपने माहौल बनाया हुआ है। बस मैं दो के दो जुमले कहकर मीर साहब को मिंबर देना चाहता हूं, ताकि इसी तरह जोश और जज्बे के साथ ये मिदहत मोहम्मद आले मोहम्मद का सफर आगे बढ़ता रहे। अबुल वफा, तुमने मुझे क्यों बुलाया, अली को क्यों नहीं बुलाया? का सरकार बस एक मुश्किल में आ गया, क्या बेगुनाह कह दूं? जागिएगा, मैं बस ये जुमला हदिया करना चाहता हूं, क्या बेगुनाह कह दूं, कैद से रिहाई चाहता हूं, का सुबह बंदोबस्त हो जाएगा। ये कहकर जो नबी जाने लगे, अनान अहमद तवज्जो करना, भाईजान क्या कहकर भाईजान नुस्खा देना चाहता हूं। कम से कम आज जितने आए हैं ना, मैं आपको ईदी देना चाहता हूं कि जमाने के इमाम का जो जश्न मना रहे हैं, मैं आपको ऐसी ईदी देना चाहता हूं कि जो आपकी नस्लों के भी काम आए। भाषा बख्तियारी, जौन जागना, कमर साहब वो क्या है ईदी? अबुल वफा कहते कि रसूल ने कहा कल तेरी गिरफ्तारी खत्म, रिहाई का बंदोबस्त हो जाएगा, जाने जो लगे। अबुल वफा ने दोनों हाथ नबी के कदमों में रखे, कहा आज आजो गए मेरे ख्वाब में तो मुझे यही बताते जाएं। तवज्जो कि मैंने अपने किस इमाम को कब बुलाना है, किस इमाम को कब बुलाना है। नबी फरमाते अबुल वफा सुन, आज के बाद मुश्किल में हो तो अली को बुलाना, हुस्न चाहिए तो हसन को बुलाना, सब्र चाहिए तो हुसैन को बुलाना, शिफा चाहिए तो सज्जाद को बुलाना, इल्म चाहते हो तो मोहम्मद बाकर को बुलाना, फिका पे काबू चाहते हो तो जाफर सादिक को बुलाना, गुस्से को पीना चाहते हो तो मूसा कासिम को बुलाना, अल्लाह की रिजा चाहते हो तो इमाम रिजा को बुलाना, तकवा चाहते हो तो मोहम्मद तकी को बुलाना, नकावत चाहते हो तो इमाम नकी को बुलाना, अस्करी कुव्वत चाहते हो तो मेरे बेटे अस्करी को बुलाना। और खबरदार, ये जो मेरा बेटा कायम है इसे हर मुश्किल में ना बुलाना कि अभी मुश्किल कोसों दूर खड़ी हो और तुम बुला लो। हाथ जोड़ के कहा सरकार, मैंने अपने जमाने के इमाम को कब बुलाना है? क्या जब कातिल की छुरी तेरी शहरत पर हो और तुझे यकीन हो कि चल जाएगी, उस वक्त कहना या साहिब जमानत निकली, तुझे कातिल की छुरी से निकाल के आप सलामत रहें, आप आबाद रहें। जश्न का माहौल बनाया हुआ है आपने। क्या कहा कि उस वक्त कहना या साहिब ज़मानत निकली, तुझे डॉक्टर साहब तुझे कातिल की छुरी से निकाल के ले जाएगा। ये है मेरे और आपका जमाने का इमाम। मेरे साथ छुरी एक वक्त में लाहौर में नहीं चलती, पता नहीं कहां कहां कत्ल हो जाते हैं। और नबी कह रहा है कि जब छुरी तुम्हारी शहरत पर हो उस वक्त कहना, फिर तुम्हें निकाल कर ले जाएगा। इमाम कहते ही उसे है जो हर जगह हाजिर नाजिर हो। और बस मैं बात आज के जश्न की खत्म करने लगा हूं इस जुमले पर कि ज़हूर करेगा मेरा मौला काबा की छत से। रात आपने शेर पढ़ा था ना कि बैतुल्लाह में होगा मातम आपके आने के बाद, ठीक है ना? कहां से ज़हूर करेगा? बुखारी साहब, काबा की छत से। सारे आज हाथ में जोड़ करके परवरदिगार सारातुल हुसैन लक़ब है इस इमाम का, खून हुसैन का बदला लेना है तो ज़हूर करबला से करवा। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। कहा नहीं करबला से नहीं कराऊंगा। मैंने कहा अली की दस्तारे इमामत का आखिरी वारिस है, नजफ से करा। कहा नहीं। मैंने कहा चलो जहां से गैबत इख्तियार की सामरा से करा। कहा नहीं, काबा से कराऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहा इसमें राज है। मैंने कहा पालने वाले कौन सा राज? फरमाया जब मेरी आखिरी हुज्जत सरकार कायम काबा से ज़हूर करेगा तो दुनिया को पता चलेगा पहला भी काबा में आया था। अली 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 पहला भी काबा में आया था, आखिरी भी काबा से आएगा। दुनिया को पता चल जाएगा इमाम जब भी मिलता है खुदा के घर से मिलता है। और शहीद मोहसिन नकवी ने कहा था ए बागे अस्करी की मुकद्दस तरीन फूल। दुआ मंगाने लगा हूं, मीर साहब को मिंबर देने लगा हूं। ए बागे अस्करी के मुकद्दस तरीन फूल, तेरे बगैर हमको कयामत नहीं कबूल।
जागिए गا चौथे विषय में तवज्जो ए बाग अस्करी के मुकद्दस तरीन फूल तेरे बगैर हमको कयामत नहीं कबूल दुनिया न मालो सर न वज़ार